biology. Now we are starting the fourth part of the biological classification. कुछ दिनों का गैप रहा है, बिल्कुल मुझे याद है, कुछ प्रॉब्लम्स थी. Now we start a fourth part of the biological classification. होप सो आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे. बिना एमसीक्यू के सॉल्व किए ये पढ़ना सब बेकार है. लेट्स माइंड इट. यस, गुड. वी आर अटैकिंग ऑन नीट. है ना, अपन नीट को अटैक कर रहे हैं, नीट के ऊपर अटैक कर रहे हैं. सो प्लीज बी अवेयर. Okay, now we are going to the kingdom first as the Monera and prokaryotes. Prokaryotes organisms are included in a Monerians. We have already discussed the five kingdom, four kingdom, three kingdom, two kingdom, and as well as six kingdom. Now we are starting a detail of the kingdom Monerians. What is the Monera? In which have all prokaryotes organism are included in the kingdom Monera. Okay, just like what is the major characteristics of the kingdom Monera? Like that, all I have already told you include prokaryotes. What is a prokaryotes? Means prokaryotes means that's a cell and that's a nucleus. Any cell haven't न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. किसी भी सेल के न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं हो. That's called prokaryotes. Means we can see that the not having a true nucleus. Genetic material still presents, known as the nucleoid, but not a true nucleus because of that absence of the nuclear membrane. So all Monerians are included in a prokaryotes. Okay, all organism are unicellular, means made up of the one cell organism, but one group is the mycelium. है ना, अपन कह सकते हैं कि जब ये ग्रुपिंग करते हैं तो माइसिलियंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट वन ग्रुप इज माइसिलियन. देखेंगे कौन कौन से अपन आगे. जेनेटिक मटेरियल इज नैग्ड, वी ऑलरेडी टोल्ड यू. सर्कुलर डीएनए मींस सपोज बात करें अपन, अगर प्रॉपर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, सपोज ये यूकैरियोट्स एंड दैट्स अ प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो रहेगा आपके सर्कुलर पैटर्न, मींस सर्कुलर लाइक ऑफ प्लाज्मिड्स. ओके, एंड यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए मटेरियल है या कहेंगे जेनेटिक मटेरियल है वो रहेगा इन अ लीनियर शेप. कभी भी ध्यान रखना, यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए मटेरियल या कहेंगे जेनेटिक मटेरियल किस कंडीशन में रहेगा, उनका प्रेजेंटेशन या कहेंगे उसका अकरेंस कैसा रहेगा, तो लीनियर. एंड प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो कैसा रहेगा आपके सर्कुलर. बट एक्सेप्ट eukaryotic have the two organelles like chloroplast and second is a mitochondria having DNA or a genetic material. Okay, tell me which type of DNA presence in chloroplast and mitochondria in concern to the it's a morphological phenomenon. Anyone tell me? I told you. Chloroplast and mitochondrial DNA is the extranuclear DNA. Extranuclear DNA means outside the nucleus. न्यूक्लियस के बाहर का डीएनए तो नाम दे दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियस डीएनए. यही वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस डीएनए है जो दैट्स आर रिसेंबल टू द प्रोकैरियोटिक डीएनए. मींस
ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी आपके कैसे रहेगा, सर्कुलर डीएनए में रहेगा, एज लाइक ऑफ द प्रोकैरियोट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना इस पॉइंट को अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट है not enclosed by nuclear envelope. We already discussed the cell organelles, ribosomes, and second is simple chromatophores, and others organelles are absent, totally absent, only present the ribosomes. Like that, mitochondria, plastids, apparatus, Golgi apparatus, lysosome, endoplasmic reticulum, ER, centrosome, etc. are totally lack. ये सब के सब क्या रहते हैं, एब्सेंस मोनेरा के अंदर। सेफ वैक्यूल डू नॉट अकर इंस्टेड ऑफ गैस वैक्यूल। यहाँ पर क्या प्रेजेंस कंफर्म नहीं है, प्रेजेंस हो सकती है, बट सब वैक्यूल्स की बात करें तो टोटली एब्सेंस। सब वैक्यूल्स प्रेजेंस इन प्लांट, प्लांट सेल्स के अंदर सब वैक्यूल्स मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपके नहीं होती है। न्यूट्रिशंस की बात करें, दैट्स अ फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशंस, एंड सेकंड द कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। मींस photosynthetic nutrition use light energy, but chemosynthetic bacteria not use light energy, they use energy from the organic component. Organic component we discuss the later. Second, non-motile, generally they are non-motile. If motile, move by the beating and simple flagella or by the gliding movement are take place. Okay, flagella, if flagella is present, the flagellar structures are composed of intertwined chain। मीन्स कहेंगे फ्लैजिला के अगर ऐसा कुछ अंदर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बना है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन से मिलकर बनी है, नाम देंगे फ्लैजिलिन। which protein? Flagellin protein is key protein of the flagella, bear a rigid cell wall, है ना, सेल वॉल प्रेजेंस होती है। सेल वॉल मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल ओनली प्रेजेंस इन द प्रोकैरियोट्स, क्या कहेंगे मोनेरियंस के पास होती है और किसी के पास में नहीं होती। सेल वॉल प्लांट में भी है, बट वहां पे सेलुलोज की बनी है, ध्यान देना। ये रिप्रोडक्शंस की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फ्यूजन्स के थ्रू या बर्डिंग के थ्रू। बाइनरी फ्यूजन्स पता है अपने को अच्छे से, एक ऑर्गेनिज्म है, इसके दो पार्ट में डिवाइड होना, बाइनरी फ्यूजन मींस। दूसरा सेकंड बर्डिंग की बात करें, सपोज यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है और इससे छोटा सा बर्ड निकलता है और ये बर्ड आपके डिटैच होके न्यू प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लाइक हाइड्रा। जो हाइड्रा में रहता है सेम थिंग से आपने को देखने को मिलती है। ओके, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड, आना चाहिए वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है ना। एक किंगडम मोनेरा के अंदर किस किस की बात अपन करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट देखना है अपन को बैक्टीरिया, वन बाय वन डिटेल में पढ़ना है अपने को। सेकेंड पढ़ेंगे अपन एक्टिनोमाइसिटीज, थर्ड पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा, एंड लास्ट पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। तो ऑल फोर आर डिस्कस्ड लेटर इन द चैप्टर। ओके, तो वन बाय वन अपन इनको स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको किंगडम मोनेरा प्रॉपर समझ में आ रहा है, या नहीं आ रहा है तो बताए। ओके, आगे बढ़े। फर्स्ट, बैक्टीरिया। व्हाट इज अ बैक्टीरिया? व्हाट इज अ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, समटाइम पैरासिटिक, है ना। कम से कम कभी कभार ये पैरासिटिक कंडीशन मीन्स, पैरासिटिक मीन्स कहेंगे डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस के फॉर्म में भी वर्क करता है। ये कुछ बैक्टीरिया आपके लिए बेनिफिशियल्स होते हैं, कुछ आपके लिए हार्मफुल रहते हैं। वो कौन कौन से अपन वन बाय वन देखते हैं इसके अंदर। ओके,
सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया, तो कहेंगे ल्यूवेन हॉक ने। किसने डिस्कवर्ड किया, आपके ल्यूवेन हॉक ने इसको डिस्कवर्ड किया पॉन्ड वाटर के अंदर। फिर बाद में एक और आपके कहा टार्टार है ना, स्कैप जो टिथ का अपन कह सकते हैं, टिथ में टाटा होता है ना, वहां से उसके अंदर भी आपके इस बैक्टीरिया को एक तरह से डिस्कवर्ड किया, और इस वजह से इसका नाम दे दिया एनिमल क्यूलियस। एनिमल से किया, नाम दे दिया एनिमल क्यूलियस इन 1675 बाय ल्यूवेनहॉक। ओके, बैक्टीरिया टर्म बाय, अब देखो बैक्टीरिया जो टर्म दिया वो किसने दिया, तो कहेंगे कि हैंडबर्ग ने इन 1838 में। ओके, समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज को क्लियर करना है, कुछ भी चीज को अपन को छोड़ने का नहीं है। बैक्टीरियोलॉजी की अगर बात करें अपन, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया compared to the many organisms, bacteria is the group shows the most extensive metabolic diversity. अब इसके लिए मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मीन क्या है, तो सीधी सी बात है कि सभी ऑर्गेनिज्म के पास में मल्टीपल ऑर्गेनल्स होते हैं, बट यहाँ पर एक सिंगल सेल, या कहेंगे एक तरह से एक सिंगल यूनिसेलुलर सेल सबके सब फंक्शंस, आपके वाइटल फंक्शंस यहाँ पे करता है, तो ध्यान देना इसका। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिशंस की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वी ऑलरेडी डिस्कस द सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगर अपन ने पहले भी कहा कि अगर मान लीजिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज कर कर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर द कार्बन सोर्स, एज अपन कह सकते हैं कार्बन सोर्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके लाइट की प्रेजेंस के अंदर प्रिपरेशन होता है फूड का, तो अपन कहेंगे उसको ऑटोट्रॉपिक। दैट्स टू टाइप्स, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, पढ़ेंगे अपन डिटेल्स के अंदर इसको। हेटेरोट्रॉपिक नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या लाइव ऑर्गेनिज्म हो। Bacteria grouped under four broad categories on their shape। किस बेस पे बात करेगा, ऑन द बेसिक ऑफ द शेप, उसके शेप के अकॉर्डिंग बात करें तो बैक्टीरिया को फोर मेजर ग्रुप के अंदर आपके डिवाइड किया गया। देखते हैं, फर्स्ट इज द स्फेरिकल, मींस स्फेरिकल्स, that like sphericals known as the coccus, spherical bacteria called as coccus. Rod shaped bacteria means that like rod shaped bacteria, rod shaped bacteria is called the bacillus. Second, a comma shaped bacteria, that like comma shaped bacteria, comma shaped bacteria is called the vibrio. Okay, and spiral means that like it's like spiral shaped bacteria called spirillum. So there are the four major groups of bacteria on the basis of their size. The four groups, the first is the spherical, means coccus. Second is the rod shaped, the bacillus. Third is the vibrio, means a comma shaped, and fourth is the spiral, means spirillum. Okay. Now next, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब अपन क्या करेंगे, एक एक जो भी अपन ने जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, उन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन डिटेल में अपन समझने की ट्राई करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं अपन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ध्यान देना, एक एक चीज को अपन ने क्लियर करने की कोशिश की है यहाँ पे, जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है नीट और एम्स आपके और जिपर एग्जाम्स के लिए, तो इवन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है ना। चले, फर्स्ट अगर बात करें अपन, बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड द होस्ट सेल। अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है वो लिविंग होस्ट के अंदर रह रहा है, बट उसको नुकसान भी नहीं कर रहा है एक तरह से, तो उसको बोलेंगे एंडोसिम्बायोंट। जैसे एग्जांपल दे दिया इसने, ट्राइकोनिम्फा, ये कहाँ प्रेजेंस होता है, तो कहेंगे गट के अंदर, जो कैटल्स होते हैं उनके कैटल के गट के अंदर प्रेजेंस होता है। दैट्स आर हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के डाइजेशन के अंदर ये हेल्प करता है। दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स अ बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर द एनिमल्स। सो वी कैन तो से दैट द
वी कैन से दैट द एंडोसिम्बायोट, नाम क्या दे दिया इसका अपन ने, एंडोसिम्बायोट नाम दिया। क्लियर, बिल्कुल, हाँ क्लियर होना चाहिए ये। सेकंड, अपन देखिए पूरे इसको न्यूट्रिशंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे अपन इसको डिटेल में भी वन बाय वन आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इस टेबल को अच्छे से समझ गए ना, तो आगे आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आराम से आप समझ सकते हैं। देखते हैं कैसा क्या है, सब वन बाय वन देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, मीन्स बैक्टीरिया की बात कर रहा है, ठीक है। एनर्जी सोर्स की बात करें, वन बाय वन की बात करें, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो केमिकल से ही अपना फूड बना लेते हैं। लाइट से तो आप एनर्जी लेते ही है, सबको पता है, बट कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जो कहाँ से आपका अपन कहेंगे कहाँ से अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। दैट्स ऑटोट्रॉपिक कह सकते हो, हाइड्रोट्रॉपिक भी कह सकते हैं। अपन ने कहा है अगर केमिकल से अपना फूड बना रहे तो अपन कहेंगे उसको कीमोट्रॉप्स। क्या नाम देंगे? कीमोट्रॉप्स। समझ में आ रहा है? कीमोट्रॉप्स। अभी कीमोट्रॉप्स को अगर बात आगे करें तो इनका कार्बन सोर्स क्या है? सपोज कीजिए अपन ने कहा कि ये केमिकल्स से तो अपना पूरा प्रोसेस या अपन कहेंगे एनर्जी का प्रोडक्शन करवा रहे, बट उनका कार्बन सोर्स क्या है? कार्बन कहाँ से मिल रहा है? तो दैट्स टू वेज। फर्स्ट तो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, दूसरा कहेंगे कि कीमोट्रॉपिक जो बैक्टीरियाज है, वो कीमोट्रॉपिक बैक्टीरियाज के पास में दो सोर्स होते हैं कार्बन के, या तो वो कहां से लेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, या वो सेकेंडरी कहां से लेंगे? एनवायरमेंट के अंदर CO2 है उससे लेने की कोशिश करेंगे। ये दोनों के दोनों कौन से माने जाते हैं? आपके कार्बन के सोर्स माने जाते हैं। बिना कार्बन के सोर्स के अपन कुछ भी नहीं करते। मैं आपके थोड़ा इससे थोड़ा हटके एक एग्जांपल देना समझाता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, 1% भी कोई अंदर आपके डाउट्स ना रहे। देखिए प्लांट के अंदर अपन ने बताया कि प्लांट में आपके जैसे भी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है तो लाइट से तो जाती है, लाइट आती है, उससे तो आपके एनर्जी आती है, ध्यान देना। लेकिन कार्बन कहां से आता है? सोर्स ऑफ कार्बन कहां से? तो एनवायरमेंट में CO2 है, उससे कार्बन आता है, तब जाके आपके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। सेम थिंग यहां पर है। यहां लाइट तो है ही नहीं है, बट कार्बन का सोर्स या सोर्स ऑफ कार्बन है, वो दोनों प्रोसेस में प्रेजेंस है। या तो वो कहां से आएगा? आपके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आएगा। समझ में आई ना? ये भी आपके कौन सा प्रोसेस? ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस है। अगर कौन सा प्रोसेस है? ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस है। अगर ये कार्बन से आ रहा तो सपोज देखिए जहां से कार्बन से बैक्टीरिया अपना ऐसा कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को ले रहे हैं तो उसको कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स बड़ा है। ऑटोट्रॉप्स का मीन्स एनवायरमेंट के अंदर CO2 से कार्बन को अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बन को वो अगर ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली अपन उसको क्या नाम देंगे? कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्लियर हुआ? बट उल्टा, अगर वो एनवायरमेंट से CO2 को नहीं ले रहे और दूसरा कोई आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं शुगर मान सकता हूं, मैं प्रोटीन मान सकता हूं, लिपिड मान सकता, एक्सेट्रा XYZ, अगर कोई आपके दूसरा केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड कौन सा? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर एनर्जी आपके कार्बन्स को ले रहा है तो उसको नाम देंगे कीमो हेटेरोट्रॉप्स। दोनों बातें क्लियर हुई? पहले होनी चाहिए क्लियर, ये तभी जाके मजा आएगा पढ़ने का। सेकंड, अब देखें जैसे जो कीमो हेटेरोट्रॉप्स होंगे, मीन इन्होंने जो आपके कार्बन लिया, वो कार्बन कहां से लिया? तो अपन कहेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट से लिया। जैसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट से लिया तो लेते ही उनका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा? तो कहेंगे वहां पे रहेगा ऑक्सीजन। दो सिंक हो सकती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा? अपन ने पहले भी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के अंदर 11th में, वैसे वापस अपने को पढ़ना ही है फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर, तभी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? जैसे ही ये सब प्रोसेस होगा, प्रोसेस इलेक्ट्रॉन जंप होंगे,
उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, तो कहेंगे ऑक्सीजन। तो इस टाइप का अगर देखा जाए तो किसके अंदर ये आपके प्रेजेंस रहता है न्यूट्रिशन, तो कहेंगे ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग वी। ठीक है, सेकंड बात करते हैं मोस्ट ऑफ किसमें, फंजाई के अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट, नॉट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन नहीं है, या तो कौन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, या होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो क्या होगा, सीधा फर्मेंटेशन होगा, पढ़ा है अपन ने, इथेनॉल वगैरह बना था। तो एग्जांपल दे दिया स्ट्रेप्टोकोकस। सेकेंड, अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सीधा कौन सा प्रोसेस चलेगा, ईटीएच चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जेड शेप में चलती है ना चेन आपके, है ना, जेड स्कीम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। एग्जांपल कोलेस्टेरियम पर। तो ये अपन ने पूरा पढ़ा। अगर केमिकल्स की वजह से, बात समझ में आई। बट अगर मान लीजिए लाइट प्रेजेंस है, लाइट अगर प्रेजेंस है, तब बैक्टीरिया कैसे आपके काम करेंगे, देखते हैं। उसी को बोलेंगे फोटोट्रॉप्स। लाइट प्रेजेंस तो फोटोट्रॉप्स, केमिकल प्रेजेंस तो कीमोट्रॉप्स। कार्बन सोर्स वही दो वापस, ऑर्गेनिक कंपाउंड और CO2। सेकेंड, जिनके अंदर अगर बात करेंगे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो नाम दे दिया हेट्रोट्रॉप्स, CO2 हो तो नाम दे दिया ऑटोट्रॉप्स। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। सेकेंड, अब इनके एग्जांपल्स देखते हो। ग्रीन सल्फर नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, है ना। इन सब बैक्टीरियाज के अंदर कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता, तो कहेंगे फोटो हेटेरोट्रॉप्स। आगे अपन देखेंगे ये कैसे फंक्शंस करते हैं। नाउ वी आर ऑलरेडी डिस्कस द इन फॉर्म ऑफ द टेबल। एक टेबुलर फॉर्म के अंदर पर डिस्कस कर दे, बट डिटेल डिस्कस इन लेटर, है ना। अपन बहुत ज्यादा डिस्कस अपन कब करेंगे, लेटर क्लास के अंदर। ओके, आप बिल्कुल कनेक्टेड है ना। फिर नेक्स्ट कह रहा है, अगर मान लीजिए फोटो ऑटोट्रॉप्स है तो दो कंडीशन हो सकती है। देखना अभी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यूज। अब इसको क्या यूज होगा यहाँ पे, यूज H2 या CO2। अब कैसे करेगा, तो H2 को यूज करके CO2 को रिड्यूस करना है, तभी कार्बन कंपाउंड मिलेगा ना आपको। तो कहेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जो वाटर को यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। देखो, वाटर को यूज कर कर CO2 को रिड्यूस कर रहे हैं, तो हाँ यस कर रहे हैं। तो कौन कौन से, तो प्लांट होंगे सभी, एल्गी होगी और साइनोबैक्टीरिया होंगे। सेकेंड यहाँ पे नहीं कि H2O को रिड्यूस करके या H2O को यूज करके CO2 को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो इसी का नाम दे दिया एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर बात कह सकते हैं अपन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बात हो रही है। एग्जांपल दे दिया ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया। क्लियर हुआ है ये अपन ने केवल एक ऊपरी ज्ञान लिया है, कह सकते हैं एक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन को अपन ने गेन किया है। अब अपन इसी को वन बाय वन अच्छे से क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो प्लीज एमसीक्यूज को जब तक नहीं आपके सॉल्व करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं बार बार क्लास के एंड में बोलता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय, मिलते हैं।